So the next topic is energy. Now, energy, right, denoted by E, energy. Okay? क्या बेटा एनर्जी का डेफिनेशन? यस पता है आपको? Come on, the capacity of doing work. The capacity of doing work. How much work you can do? That is called what here? Energy. Energies are available in different forms. Solar energy, ये भी energy. Next, nuclear energy. और बेटा magnetic energy. Clear? Electromagnetic energy. Okay. And mechanical energy. Mechanical energy की meaning potential energy and kinetic energy. Sound energy. Okay, wind energy. So बहुत सारी energy है बेटा. But here the important is we are going to discuss about two energies. That is kinetic energy and second one is potential energy. These two energies are called mechanical energies. Kinetic energy plus potential energy, that is called mechanical energy or total energy. So, इसका definition भी दो क्या बेटा है? Simple लिख रहा हूँ. Energy means capacity of doing work. First, doing work. Next बेटा, first one. What is potential energy? Potential energy, इसका मैं थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा. पोटेंशियल एनर्जी कैसे अप्लाई करना चाहिए, राइट? देखो डिटेल में दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा. पता है डेफिनेशन क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी of a body due to the change in the position, due to the position. क्या बेटा ये सिंपल लिख रहा हूँ. पोटेंशियल एनर्जी means what here? Energy possessed by the body due to the position. It is simply लिख रहा हूँ मैं, due to position. The energy is what here? Due to position. Simple here. Due to position. So what is the equation for potential energy? पहले इक्वेशन दे रहा हूँ करिए, उसके बाद में एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा. नाउ इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ देखो बेटा, इक्वेशन में पहले डिराइव करने वाला हूँ, डायरेक्ट मत लिखिए, डिराइव करेंगे. इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखिए ये बेटा, ये ग्राउंड सरफेस है. It is surface of the earth, let it be ground. ठीक, surface of the earth. यहाँ बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आप मास में m ले जाओ, मास इज m और इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. जस्ट ओके, रिलीजिंग टुवर्ड्स द अर्थ, रिलीजिंग टुवर्ड्स द अर्थ, राइट? तो यहाँ बेटा इस ऑब्जेक्ट पर कौन सी फोर्स एक्ट? Which force is act on the object? That is nothing but gravitational force. कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है? Yes, gravitational force. तो क्या होगा बेटा यहाँ? Gravitational force F is equal to, come on, mg. क्या होना चाहिए? F equal to mg. और बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ बेटा? ये S is equal h when body reaches to the what here? On the ground, reaches to the ground, reaches to the what here? Ground. तो therefore क्या होना बेटा यहाँ? Distance h और कितनी फोर्स एक्ट हो रही है? mg. Therefore the work done on the object body by the gravitational force is stored in the form of potential energy. और एक बार रिपीट करो. The work done on the object by the gravitational force is stored in the form of energy. Work nothing but energy. Work nothing but what here? Work is nothing but what here? Energy. Now देखो बेटा क्या लिख रहा हूँ? work done
by gravitational force, gravitational force, come on, क्या होना बेटा, is equal to potential energy. Therefore work done is nothing but potential energy. तो बेटा वर्क डन का फार्मूला बता दो मुझे, कम ऑन, वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन में एक कांसेप्ट एक्सप्लेन किया था बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है, तो फिर वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में बेटा, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आल्सो इस डायरेक्शन में, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, force displacement are in the same direction, work done is positive. If force and displacement are opposite direction, work done is negative. याद है, क्लियर, हाँ, तो बताओ बेटा यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन तो वर्क डन क्या होना चाहिए, F into, यस हो गया, प्रूफ हो गया बेटा, अगर इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी, नाउ देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू F इक्वल टू mg, S इज इक्वल टू h, पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh, S की वैल्यू बेटा h, F वैल्यू mg, F इक्वल टू mg, S इज इक्वल टू h, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, this is the equation of potential energy, remember, okay, mgh, potential energy, okay, या बेटा g क्या है, वे डाउट आया आपको, g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है g क्या है बेटा, acceleration due to gravity, you know this quantity, acceleration due to gravity value क्या बेटा यहाँ 9.8 meter per second square on the surface of the earth, on the surface of the earth, ठीक है, ये होगा बेटा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ सेकंड वन इज सपोज ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट बेटा इस डायरेक्शन में मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में मैं लिफ्ट कर रहा हूँ थ्रू हाइट h, s इज इक्वल टू h, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है आपको क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब देखिए फोर्स इज डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो बेटा वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव लेना चाहिए, तो देयरफॉर हियर वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, क्या होना बेटा, क्या होना चाहिए, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन का फार्मूला F into S, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बेटा, F इज इक्वल टू mg sh, बट मैं यहाँ माइनस साइन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, या वर्क डन देखो बेटा F into S, बट या माइनस साइन ले रहा हूँ, माइनस साइन क्यों ले रहा हूँ, कम ऑन, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, कल की क्लास में पढ़ाया था मैं वर्क डन नेगेटिव और पॉजिटिवली कंडीशन, बराबर, डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या बेटा अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वर्क डन नेगेटिव लेना चाहिए. देखो तो यहाँ फार्मूला क्या है बेटा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस mgh, ओके. तो बेटा फोर्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, देखो ये mgh, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होना चाहिए, माइनस mgh, समझा ना, ओके. अब बेटा थोड़े डिफरेंट एप्लीकेशन में ले रहा हूँ, एप्लीकेशंस देखिए. थर्ड, लिसन, अब ये बेटा यहाँ से देखो, राइट, आई एम टेकिंग हियर
दिस इज द सिचुएशन, स्टेट्स ले लीजिए, दिया है, ठीक है। देखो सर, पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे यूज करना चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट है बेटा, these are the staircase or I am taking steps, ओके। और इसकी जो हाइट है बेटा, स्टेप वन स्टेप की हाइट मैं कंसीडर कर रहा हूँ x ले लीजिए, क्या है बेटा x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, ये भी x है, ओके ना। और यहाँ से यहाँ तक बेटा ये हाइट चलेगा। देखो ध्यान से देखिए, अप्लाई कर रहा हूँ, देखो पोटेंशियल इस पोजीशन को बेटा मैं ये कह रहा हूँ, when the body is at this position B, इस पोजीशन C ले लीजिए, इस पोजीशन D ले लो, D पोजीशन ले लो। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला mgh बराबर। अब थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखिए, ये होगा बेटा, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से मैं हाइट मेजर करने वाला हूँ, हाइट मेजर करने वाला हूँ, ओके। So what is the potential energy of the object when the object at a position, mass is m, so come on, first one, that at a, what is the potential energy, क्या होना बेटा, potential energy at a equal to mg, हाइट देखिए, हाइट वैल्यू कितनी है बेटा, हाइट वैल्यू यहां से देखिए, इस रेफरेंस लाइन से देखो हाइट, इस रेफरेंस लाइन से देखिए हाइट कितनी, हाइट h, तो क्या लगना चाहिए mgh, हो गया, यहां से आते mgh। सेकंड at b पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बता दो मुझे, b पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, कम ऑन थिंक, सोचिए, b पॉइंट पर mgh। अब बेटा मुझे ये रेफरेंस लाइन से b पोजीशन तक मुझे हाइट कैलकुलेट करना है। अरे सिंपल बेटा, देखो ये h है, h वैल्यू, ये x है, ये तो ये क्या होना चाहिए, यहां से यहां तक क्या होना चाहिए, कम ऑन, ये x है बेटा, ये x है, टोटल h, तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर मान लीजिए, ये 3 मीटर, तो फिर ये क्या होना चाहिए 7, ये 10, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 minus 3 is nothing but 7, क्लियर। मुझे ये वैल्यू चाहिए, so this value minus this one, you can get this height, बराबर h minus x, you can get this। तो ये क्या होना बेटा, ये क्या होना चाहिए h minus x। अब ये दोनों ऐड कर दो, आंसर h ही होना चाहिए, x plus h minus x, ये दोनों कैंसिल, यस आंसर इज h। तो हाइट की वैल्यू, b पॉइंट पर हाइट की वैल्यू h minus h। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट b, एट पोटेंशियल एनर्जी एट b, पोटेंशियल एनर्जी एट b इक्वल टू कम ऑन mg h minus x, h minus x। अब थर्ड, कम ऑन थिंक इट, C पॉइंट पर आप फाइंड आउट कीजिए, कम ऑन एट C पॉइंट, कम ऑन डू इट, C पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो बेटा। चलो मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, इक्वेशन बताओ क्या होना चाहिए एट C पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी। हां देखो C पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो गया, थोड़ा फास्ट सॉल्व करते जाओ। पहले हाइट कैलकुलेट कीजिए, देखो ये C पॉइंट यहां, ये हाइट चाहिए मुझे, ये हाइट। अब बेटा ये टोटल h वैल्यू, ये x, ये भी x, तो ये क्या होगा बेटा, यहां से आना इट विल बी, ये x है, ये क्या है, x है, ये x plus s, दैट्स नथिंग बट twice x, twice x, और ये h, तो क्या होना बताओ, h minus twice x, h minus twice x, ये h वैल्यू, ये x, ये भी x है, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए h minus twice x। कम ऑन, आंसर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एट C पॉइंट mg h minus 2x।
ओके तो कम ऑन लास्ट वन बताओ क्या होना है डी पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी कम ऑन एट डी पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अरे बेटा हाइट की वैल्यू बता दो कुछ हाइट है क्या there is no height from the surface of the earth there is no height for the object it is contact with the earth surface तो क्या होना बेटा हाइट वैल्यू 0 या हाइट वैल्यू क्या है नहीं है या हाइट इज इक्वल टू व्हाट इज 0 फॉर डी पॉइंट तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए डी पॉइंट इज 0 why because potential energy क्या बेटा फार्मूला mgh हाँ come on potential energy at d point mg h की वैल्यू 0 into something that is nothing but 0 this is the conclusion simple याद रखिए when the object is contact with the earth surface then the potential energy of that object is 0 clear अब देखो सिंपल यहां से देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस ऑफ द अर्थ ठीक है सीधी कंसंट्रेशन से देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट देखो मैं ये लगा रहा हूं दिस ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट तो कैसे लेना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू देखो एक वर्ड यूज कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू तो यहां से हाइट मेजर इस पॉइंट से हाइट मेजर करो बेटा m मींस मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट m g h वैल्यू क्या लेना चाहिए h वैल्यू इस पॉइंट से मेजर करो ये हाइट बेटा विद रिस्पेक्ट टू दिस मार्कर m g h ठीक है नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब हाइट कौन से लेना चाहिए ग्राउंड से मेजर करो हाइट देखो विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंड करना है देखो यहाँ वर्क डन डिपेंड्स ऑन व्हाट हियर रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट नथिंग बट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द व्हाट हियर रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ से हाइट मेजर करना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से हाइट मेजर कीजिए mgh now potential energy of this object with respect to ground तो ग्राउंड से हाइट मेजर करो अब ये दो ऑब्जेक्ट में बेटा किस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है मान लीजिए ये a ये b ऑब्जेक्ट कम ऑन a और b ऑब्जेक्ट है which has the more potential energy a और b अरे ये सिंपल but with respect to ground with respect to ground the potential energy of A is greater than B अब देखिए ये ऑब्जेक्ट स्लोली नीचे मूव हो रहा है ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर आ रहा है एट पर्टिकुलर हाइट यस अब बता दो ये A ऑब्जेक्ट भी है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी दोनों की हाइट सेम है आप देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन B नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस क्योंकि हाइट की वैल्यू कम हो रही है बेटा राइट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस व्हाई बिकॉज़ हाइट वैल्यू इंक्रीजेस तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट एंड द रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो भी डिपेंड ओके यहां देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ये रेफरेंस लाइन है बेटा ये रेफरेंस लाइन है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन द पोटेंशियल एनर्जी of object A, B, C, D has the different value. different value. A point पर ये, B point पर ये position, C point, A, D point तो potential energy 0 क्योंकि height value 0. समझा कि so ultimate beta potential energy depends upon the height taken from the reference line. Clear? Okay, it is about the potential energy. Next, second one is kinetic energy. Second क्या बेटा
काइनेटिक एनर्जी। कम ऑन, कुछ नोट आउट करना है तो लिख दीजिए, राइट डाउन। ओके, सेकंड एनर्जी क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ये फाइंड आउट करना है मुझे। ओके, सो डेफिनेशन बताओ बेटा कुछ, क्या है बेटा डेफिनेशन? काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन, हां कम ऑन थिंक इट। पोटेंशियल एनर्जी मींस एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन, बस सिंपल। एनर्जी possessed by the body due to the, yes, position. If the position changes, then the potential energy will be changed. डिपेंड कर रहा है बेटा पोजीशन पर। यहां पोजीशन मैं थोड़ा लिफ्ट कर दिया, यस पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हां आएगा डेफिनेशन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? यस, एनर्जी इज ड्यू टू, सिंपल बताओ, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मूविंग कार, it has kinetic energy. Flowing water, kinetic energy, move होना चाहिए with particular velocity, with particular velocity, then that object should have the kinetic energy. So simple, kinetic energy, kinetic energy, हाँ simple लिख लो बेटा, क्या? due to motion, energy due to the what? Motion of the object, right? Now what is the equation for kinetic energy? क्या बेटा equation? Equation of kinetic energy, equation of kinetic energy क्या बेटा? Kinetic energy equal to half m v square. m is equal to mass of the body और v क्या बेटा? v equal to speed or velocity, no problem. Is there nothing but what is speed? Okay, but कुछ स्टूडेंट को चाहिए सर प्रूफ, we require proof. चलो प्रूफ भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। What is the proof of this? देखो प्रूफ एक्सप्लेन करो बेटा। प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m v square। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाला हूं। इक्वेशन ऑफ मोशंस, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहां देखो एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग रेस्ट पोजीशन में मैं ले रहा हूं, या कुछ मैं फोर्स अप्लाई किया बेटा, ये फोर्स, तो आफ्टर t time, the final velocity I am taking v, और बेटा ये एवरेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना बेटा मैं यस ले रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है यस ले लीजिए, डिस्टेंस वैल्यू यस। क्लियर? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आई एम टेकिंग हियर a, ये क्या बेटा है? एक्सेलरेशन, ओके। सो फोर्स अप्लाई किया मैं और बेटा डिस्प्लेसमेंट, force is applied, displacement is there, the work is done. Force applied, displacement is there, means work is done. तो बेटा work done on this object to move from one point to another point is stored in the form of kinetic energy. So come on, work done is nothing but क्या होना बेटा? kinetic energy. तो वर्क डन के लिए फार्मूला F into S पढ़ा था, वर्क डन नथिंग बट व्हाट? F into S, पॉजिटिवली है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन से नहीं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव लेनी चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो कम ऑन, वर्क डन नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल F into S, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F इज इक्वल m a s, या AS। ओके, तो मुझे इक्वेशन क्या चाहिए? हाफ m v स्क्वायर चाहिए।
v स्क्वायर चाहिए, ठीक है, यम तो ठीक है यार। अब इस टर्म में बेटा मुझे v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कम ऑन ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए। तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन में सेलेक्ट करो, कौन सी इक्वेशन में यूज करूं, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। देखिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, s is there, initial velocity, final velocity, distance, connected, equation is third equation, u v s. Therefore from v square minus u square equal to 2as बराबर, but u क्या है बेटा यहाँ 0, body start from rest position, v square minus 0 equal to 2as, v square equal to 2as बराबर। therefore s is equal to क्या होगा बेटा v square upon twice a, equation number 2, substitute 2 in 1, then we have substitute कर दो, kinetic energy equal to m a, s की वैल्यू बेटा s वैल्यू v square upon twice a gets cancelled, therefore kinetic energy equal to half m v square. This is the proof of kinetic energy. That's simple. बराबर, this is the proof of kinetic energy half m v square. चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, come on, देखो आंसर देखो। If the object is at particular height, it has potential energy. If the object is moves with velocity, it has kinetic energy. Clear? Now write down the question. Question लिख दीजिए। Example A, flying bird possesses which energy? Which energy? Option A, kinetic energy. Option B, potential energy. Option C, both. D, option is none of this. Which option is correct? Come on, think it. Think it. Sojo, the flying bird, that possesses which energy? कौन सी energy? Kinetic energy, potential energy, or both? Both means mechanical energy. Both means mechanical energy. Kinetic energy plus potential energy is called mechanical energy. And which option is correct? Simple, flying bird. Right? Particular right say. Someone may say this is the word. Let it be. Let it be. Okay, I am not perfect in diagram. Assume it. Physics is nothing but imagination. Okay. तो ये वर्ड समझ लो बेटा, ये वर्ड है, ठीक है, राइट, इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। ये बर्ड बेटा पर्टिकुलर हाइट पर है, देखिए पर्टिकुलर हाइट पर है कि नहीं, फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ द, ये रेफरेंस लाइन, और मूव हो रहा है विद वेलोसिटी। तो कम ऑन सोचो, पर्टिकुलर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, पर्टिकुलर हाइट पर ये पोटेंशियल एनर्जी, मूव हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। सो आंसर इज, योर ऑप्शन इज both. That is nothing but mechanical energy. Due to motion, kinetic energy, at particular height, potential energy. Therefore, it has both energies. That is nothing but mechanical energy. Kinetic energy plus potential energy. Clear? Due to motion, kinetic energy, and due to height, potential energy. That is why it has mechanical energy or both energies, kinetic and potential energy. Clear? Okay? सर और एक डाउट आना चाहिए, ये डेरिवेशन में मैंने बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर किया था। एक तो स्टूडेंट को आना चाहिए, डाउट आना चाहिए, कम ऑन। जब इस बेटा सब्जेक्ट क्लियर होने के लिए चांस है, यू विल गेट द कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट। हर एक पॉइंट पे डाउट आना चाहिए।
सर यहाँ 0 लिया था, ठीक है, तो यहाँ हाफ mv स्क्वायर if in the object u is not given 0, it has initial velocity, particular velocity है सर, जब वर्क डन क्या होना चाहिए? यहाँ बेटा 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर दिखाना है। पर यहाँ if u is not equal to 0, then what is the work done on the object? Simple, क्या नाम है? नोट ये ऑब्जेक्ट, ये इनिशियल वेलोसिटी u, फोर्स अप्लाई करने के बाद बेटा यहाँ फाइनल वेलोसिटी v, मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन, फिर क्या होना चाहिए? अरे सिंपल, वर्क डन नथिंग बट व्हाट हियर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिखा था बेटा, हाफ mv स्क्वायर वर्क डन। व्हाट इज द वर्क डन? इफ u is not equal to 0, then work done is nothing but change in what here? Change in kinetic energy। सिंपल याद रखो, change in kinetic energy, final kinetic energy half mv square minus initial kinetic energy half m u square, that is the work done, that is the work done। Note, this is the first point, final kinetic energy minus initial kinetic energy, that is nothing but work done। Clear? Suppose initial kinetic energies are taking here 1 joule, energy units, nothing but work done units। kinetic energy रहने दो बेटा, potential energy what it may be, units is joule in SI system, in CGS system hertz, okay, right। so बेटा यहाँ 1 joule ले रहा हूँ मैं initial kinetic energy, हमारी final kinetic energy समझ लीजिए 5 joule, तो work done is nothing but 4 joule, work is done on the object is what 4 joule, 1 और ये 5 minus 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो बेटा u not equal to 0 है, तो फिर ये इक्वेशन कंसीडर करना चाहिए हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। क्लियर? ओके, सो सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट इज ये अर्थ ग्राउंड है ना, ये क्या है? ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड से बेटा ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस पोजीशन पर ले रहा हूं, मास ये ले लीजिए, ये हाइट वैल्यू h1 ले रहा हूं, हाइट वैल्यू कितना बेटा? h1, ये पॉइंट ले रहा हूं। अब मुझे a से बेटा यहां b पोजीशन पर मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट, राइट? ये बेटा हाइट यहां से यहां तक हाइट वैल्यू, हां ये h2 ले लीजिए, h2। Then what is the work done on this object to shift from A to B position? A to B position work done क्या होना चाहिए? Come on guess कीजिए, work done क्या होना चाहिए? बताओ बेटा, work done क्या होना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक मुझे शिफ्ट करना है work done। अब यहाँ वहाँ बेटा change in kinetic energy work done, यहाँ क्या होना चाहिए? change in potential energy। Come on, potential energy at A point mgh1, potential energy at B point mgh2, समझा कि नहीं? mgh2, तो बेटा क्या होना चाहिए? वर्क डन, फिर वर्क डन नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कम ऑन, क्या होना बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A, बराबर? ओके, तो क्या होना बेटा यहाँ? पोटेंशियल एनर्जी B mgh2 minus mgh1, तो पोटेंशियल वर्क डन नथिंग बट mg टेक आउटसाइड h2 minus h1, बस आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड mgh2 minus h1, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, पोजीशन चेंज हो रहा था बेटा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ वर्क डन इक्वल टू change in kinetic energy। Clear? Okay, thank you।